left tomorrow or yesterday. I am assuming that only these people join the class, so I will start now. Okay, so in the last lecture, we had talked about the universal language, and just to remind you of what we had talked about, we had talked about a language LD, which is the diagonalization language. Given M, LD is that language which has all those Turing machines which do not accept the encoding of N themselves. So if M is the Turing machine and W is the encoding of this Turing machine, LD is the diagonalization language where the Turing machine does not encode its own the word that represents its encoding. So this is the diagonalization language. From now on, for the rest of the examples, whenever I talk about W, I will always mean that W is the encoding of the Turing machine in question. If unless and until I state otherwise, because all these problems are based on accepting the encodings themselves, and our alphabet will comprise of 0 and 1. uh, because we are basically using 0 and 1, but this can be generalized to any alphabet also. Then we talked about LU. Can anyone tell me what is the universal Turing machine? Any idea? We had created a universal Turing machine. What did it do? Am I audible? Is Can anyone tell me what is a universal Turing machine? Whatever the name suggests. I will not be able to explain the concept further if you don't know what is a UTM. This is the definition. Now, please tell me what you understand by this. No answers? Okay. So I will explain. Universal Turing machine is a Turing machine M prime such that M prime accepts the encoding M of a Turing machine M. So encoding of this and the word it accepts. So something of the form 0, 1, 0, 0, then probably 1, 0, 1, 0, 0, so on and so forth till the end of the string. Once this is basically encoding of your this machine, and there must be some word that this machine would be accepting. For example, if I am saying that M is even, so encoding of even and some word that you want to pass to it, like it could be 00, it could be 0101, or it could be something which is not accepted.
something of this sort. So universal Turing machine is a Turing machine which accepts encoding of a Turing machine, some other Turing machine, and some possible input string that you want to run on it. So basically all kind of possible Turing machines, the universal Turing machine runs, and whatever is accepted by the universal Turing machine becomes the language LU. So if you are listening, then this is what we are going to use from now on. So we have to prove that LU is recursively enumerable but not recursive. I think we had done the part that it was not recursive. So we knew that LU is recursively enumerable. If LU was recursive, LU prime will also become recursive. But if LU prime is recursive, then it will accept LD. It will accept the diagonalization language, but we have already shown that diagonalization for diagonalization language there is no Turing machine. We have already shown that. Now I will show you why LU prime will accept LD if we have assumed that uh, LU is recursive. So here are three things that we are talking about. We want to prove that LU is recursively enumerable but not recursive. One thing. So if we assume that LU is recursive, because a theorem that we had studied before, its complement will also be recursive. It will also be recursive. So LU prime is also recursive if this assumption is correct. So that is my basic premise. Now we are saying that if I will try to construct a LU prime which is the complement of LU, assuming it is recursive, there will be a Turing machine that will always halt either on accept or on reject. Now this LU prime, if it is recursive, has the capacity to accept LD, but we had already told that we cannot create any Turing machine for LD. No Turing, but in this way we are saying that LU prime के लिए आप जो ट्यूरिंग मशीन बनाओगे द ट्यूरिंग मशीन दैट यू विल क्रिएट फॉर LU prime will be able to accept LD. If I am able to show that the Turing machine for this is able to accept LD, that means my basic assumption is wrong. I'm contradicting the result that I have already proven before. So that's why LU prime is not recursive. And because LU prime is not recursive, so LU is also not recursive and hence it is recursively enumerable. So there are a lot of things going on here. If you are clear with this, I will move ahead. Otherwise, I can explain this again. You just have to answer whether you are clear or not. Or give me a go ahead that I should go ahead. Yes, ma'am. Should I go ahead? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, see, what happens is that when you try to solve a problem, sometimes you don't know how to solve this problem. For example, if when you were kids, you did not know that you know how to multiply, let's assume. So what we did was we mapped it to another problem, an instance of another problem, where we started adding 2 4 times. Okay. So what we are saying is that if we don't know how to solve this problem, why not reduce it to an instance of another problem which we know how to solve? Initially, when you are kids, you don't know how to multiply. Your teachers tell you how to add before they tell you how to multiply. So, when given a problem which you don't know how to solve, you will try to map it or reduce it to a problem that you already know. And if you are able to solve this problem, then you will be able to solve this problem, because आपको रिजल्ट ही चाहिए ना. अब आप इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो, उससे फर्क नहीं पड़ता.
So this is known as reduction. I have created an instance, I've used an instance of this multiplication problem and reduced it to an instance of addition problem which I know how to solve. So if I can solve this, suppose if this gets accepted or if this gets rejected, I mean there is some result of this, then I can conclude that the same result is applicable to it. So if I'm saying that it halts and accepts, then this will also halt and accept. If this halts and rejects, then this will also halt and reject. So this is called reducing one problem to another. So what we are going to do is we are going to now use this reduction concept and try to reduce this LU prime. So we are trying to map an instance of LD diagonalization to LU prime, and we will see what happens. So now you want to create a construction of M prime as illustrated as follows. The details, okay, let's not get into the details. I will tell you like this. You are trying to map a reduction of LD to LU prime. You know how LD works. And now you are going to see if that is applicable on LU prime also, because that is some problem that you don't know. So what we are doing is we are applying a reduction. Now suppose there is a word W. Now I already told you that this W is an encoding of some machine M. Now if I want to pass W and see that it accepts an encoding of itself, so what will my input be? W, W. Now listen to this carefully. LD is what problem? LD is the problem where it says that I am going to contain all the Turing machines which do not accept their own encoding. Okay. So if I want to run it, let me पास इट टू अ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन. यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या करती थी? यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन किसी भी ट्यूरिंग मशीन की एनकोडिंग लेती थी एंड लेट मी कॉल इट WM, और कोई भी वर्ड उसको पास करा देती थी और चेक करती थी कि वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है. तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये ट्यूरिंग मशीन खुद W है जो आपके एनकोडिंग है, लेकिन वो वर्ड कोई भी रैंडम वर्ड नहीं है. मतलब इट इज ऑब्वियसली अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, बट इट इन उसका मतलब इट इज इन इफेक्ट दैट इट इज एन एनकोडिंग ऑफ इटसेल्फ. इज दिस क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? मैम एक बार और रिपीट करना. श्योर श्योर. ओके. सो हमने ये बोला है कि हमें ना प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है दूसरे प्रॉब्लम पे. मुझे एलडी के बारे में पता है और अब मैं एलयू प्राइम के बारे में कुछ इन्फर करना चाह रही हूँ. हमारी एलडी क्या थी? एलडी वॉज सेट ऑफ ऑल दोज लैंग्वेजेस वेयर द ट्यूरिंग मशीन डिड नॉट एक्सेप्ट एन एनकोडिंग ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, दैट वॉज LD. So let's say मैं इसको not equal to लिख रही हूँ, but I assume that you know what this means. So this was LD which did not accept an encoding of itself. LU क्या है? LU एक ट्यूरिंग मशीन है, एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है जिसको आप कोई भी ट्यूरिंग मशीन पास करते हो, बेसिकली एनकोडिंग करते हो उसके पास. So you run a Turing machine's encoding. So let WM be an encoding of a Turing machine that you want to pass. Let me call this WM prime. And then you want to pass a word. इसका मतलब क्या है कि कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट कर रही थी एम प्राइम, लेट मी कॉल इट इवन इवन, और एम प्राइम को आपने कोई वर्ड पास किया, लेट मी से यू पास 0 1,
0 and you wanted to check whether this machine accepted this or not, assuming this was even. लेकिन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या करती है, सिमुलेट करती है ऐसा कुछ कि कोई भी ट्यूरिंग मशीन इस पे चला दो। अब वो ट्यूरिंग मशीन कैसे चलाओगे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पे, उसकी एनकोडिंग ही रन करनी पड़ेगी ना, जीरोज एंड वंस की फॉर्म में ही उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन जीरोज एंड वंस ही समझती है। तो एम प्राइम ना पास करके उसकी एनकोडिंग पास कर दी, और जो इनपुट चेक करना चाहते हो वो इनपुट पास कर दिया, और उसके बाद रिजल्ट चेक करने लग गए कि क्या हुआ इसके बाद। तो बेसिकली आपने ये ट्यूरिंग मशीन सिमुलेट करी। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बोलती है कि मैं कोई भी ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट कर सकती हूँ, मुझे उसके एनकोडिंग दे दो और जो भी वर्ड चेक करना है वो दे दो। दैट इज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमें रिडक्शन करनी है so that we see what happens, because we know that LD is not even recursively enumerable. तो अब हमने क्या किया कि जब आपने LD को सिमुलेट करा था, तो उसको सिमुलेट करने के लिए आपने को क्या करना था कि आपने एक ट्यूरिंग मशीन की एनकोडिंग पास करनी थी। एनकोडिंग का आप किस फॉर्म में करोगे, WM की फॉर्म में करोगे। अब उसको कोई भी रैंडम W ना पास करके इनपुट स्ट्रिंग ही पास करना है ना, तो व्हाई नॉट पास एन एनकोडिंग ऑफ इटसेल्फ, कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पासिंग एनी 0+1 स्टार में तो आ रही है एनकोडिंग भी। एनकोडिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग विच इज 0 एंड 1 स्टार, बस आपने उसमें कुछ रूल्स से आपने बनाया है। तो हम ये बोल रहे हैं एनकोडिंग तो पास करो, ट्यूरिंग मशीन को खुद को पास करो, और उसकी बाद उस वर्ड जो आपने एक्सेप्ट करवाना है वो वर्ड कोई भी रैंडम वर्ड नहीं, दोबारा से यही वर्ड पास करो। इतना समझ आ गया? जिसने भी रिपीट करने के लिए पूछा था वही एक बार बता दो। हाँ मैम। ठीक है ना, तो हम कोई 0110 नहीं कर रहे, जो भी आपने ट्यूरिंग मशीन की एनकोडिंग लिखी थी वो पास कर रहे हो। अब ये कैसे सिमुलेट करोगे, ये कॉपी मशीन लगा के कर सकते हो ना, WM है और दोबारा से WM पास करना, तो कॉपी मशीन लगा सकते हो। और दिस अगर आपको याद हो एनकोडिंग्स में हम इसको स्पेशल 111 को ब्लैंक कहते थे, तो दिस इज बेसिकली W ब्लैंक W। अगर आपको याद हो हमने 111 को ब्लैंक लिया हुआ था। अब हम ये बोल रहे हैं कि बेसिकली दिस एंटायर थिंग इज हाउ यू आर क्रिएटिंग LD। अब ये बोल रहे हैं कि जब आपने ये स्ट्रिंग पास किया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के उस पे, तो अगर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती तो ये वाली मशीन जो है रिजेक्ट करेगी, और अगर वो रिजेक्ट करती है तो ये वाली एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हमने रिकर्सिव एज्यूम किया हुआ था। LU को की जगह पास करने की बजाय LU क्या करती है कि हमने रिकर्सिव एज्यूम किया है, तो मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। LU कह रही है कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन मैं हूँ और मुझ पे कोई भी ट्यूरिंग मशीन चला लो और कोई भी वर्ड चला दो, क्योंकि मैं रिकर्सिव हूँ तो या तो मैं एक्सेप्ट करूंगी या मैं रिजेक्ट करूंगी। अगर ये LU थी तो LU प्राइम भी बना सकते हो, क्योंकि वो भी रिकर्सिव होना चाहिए। तो अगर LU एक्सेप्ट कर रहा होता तो LU प्राइम रिजेक्ट करेगा, और LU अगर रिजेक्ट कर रहा होता तो LU प्राइम एक्सेप्ट करेगा। तो हमने एक हाइपोथेटिकल मशीन बनाई जिसमें स्ट्रिंग क्या पास किया, ट्यूरिंग मशीन के एनकोडिंग, एंड वापस वो खुद को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करिए। तो क्या हुआ, ये जो पूरी मशीन है ये बेसिकली LD एनकोड कर रही है। आपने एक ट्यूरिंग मशीन को आपने ये पूरी की पूरी जो चीज है एक ट्यूरिंग मशीन को खुद का इनपुट दे दिया, और इसका रिजल्ट भी आप रिपोर्ट कर रहे हो कि या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो जब आपने ये दो मशीन्स कंबाइन करके किया तो आपके पास LD का रिजल्ट आ गया। बट इसका मतलब ये है कि आप LD के लिए ट्यूरिंग मशीन बना पाए, आप LD के लिए ट्यूरिंग मशीन बना पाए, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम थोड़े दिन पहले प्रूव करके आए हैं कि डायगोनलाइजेशन लैंग्वेज के लिए कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट इज नॉट इवन रिकर्सिवली एन्यूमरेबल। तो मेरा बेसिक प्रीमाइस कि LU रिकर्सिव है और उस वजह से LU प्राइम भी रिकर्सिव है,
वो गलत था. सो दैट्स वाई दे आर नॉट रिकर्सिव, दे आर रिकर्सिवली एन्यूमरेबल ओनली. तो बस यही सारी कहानी इसमें इन्होंने लिखी है जो मैंने आपको वर्ड्स में समझाई है. I will forward you a video which explains it more, but it exactly says what I have said right now. So यही सारी कहानी इन्होंने ये बोली है. Just more technically, m prime यूज करके. ये सब मैंने यही बोला था. So LU is also undecidable. Undecidable मतलब रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है. ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो, जहां एक्सेप्ट करना है वहां एक्सेप्ट कर जाएगी, पर जहां रिजेक्ट करना है या जो वर्ड पार्ट नहीं है लैंग्वेज का उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं. तो LU एंड LU prime are recursively enumerable but they are not recursive. So that's it. So, sorry, LU is recursively enumerable, but LU prime is not recursively enumerable. You cannot create a Turing machine for LU prime also. And that finishes the topic. And the halting problem ये मत पढ़ो. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जब आप जावा या सी प्लस प्लस या पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखते हो, तो अब आप ये समझ सकते हो कि आप उसकी एक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो, बिकॉज दैट इज दीज आर रैंडम एक्सेस प्रोग्राम्स, सो यू कैन क्रिएट अ ट्यूरिंग मशीन ऑफ दैट. बट हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये बोलती है दैट if you want to decide that if you have written a program in any language, any program is what an algorithm that you are running to do some task, right? So the halting problem states that there is no way I can decide that this program will ever stop. मतलब जैसे आपने while infinite loop लगा दिया तो वो कभी स्टॉप नहीं करेगा, और हो सकता है किसी सिचुएशन में स्टॉप भी कर जाए, कंडीशन मीट कर जाए तो इट स्टॉप्स. बट और हो सकता है कि देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट ऑलवेज स्टॉप. अगर योर कोड इज करेक्ट एंड दे विल ऑलवेज स्टॉप. देर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स विच stop sometimes and loop forever sometimes, and there will be certain problems which never stop. There are different kinds of problems. So halting problem simply says that there is no Turing machine which can actually tell you whether a given program will halt or not. That is the simplest thing, the way you can state a halting problem. Halting problem says that there is no Turing machine to which if you pass a program, which obviously this program is also a Turing machine. So whether it will stop or not, there is no Turing machine that can help you decide that. So halting problem is also an undecidable problem. ये प्रॉब्लम इसलिए होगी कि जब आप एल्गोरिथम्स, कभी एडवांस एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, तो देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व येट. तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस कैटेगरी में आती हैं. तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए का रीजन ही ये होता है कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं है. एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड आवर talk course with, that this is what we have to talk about ultimately, that not all problems are decidable and halting problem is one of those. So this gets together over here, and then I will just touch the last topic. It's nothing, I've already told you about reduction. So if you have an algorithm, you convert instances of a problem P1 to instances of a problem P2 that have the same answer. Then you can say that P1 reduces to P2. P1 के instances को P2 पे convert कर दो. मतलब इनपुट अगर P1 है तो आउटपुट P2 जैसा आ रहा होगा. तो वी आर सेइंग दैट बेसिकली P1 इज reducing to P2, and we can say that P2 is at least as hard as P1. मतलब अगर P1 का कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज थी तो सेम स्पेशल प्रॉपर्टीज P2 में भी होंगी जो हम अभी अभी करके आए हैं. So we can use this to show that P2 is P1 के इंस्टेंसेस P2 पे रिड्यूस कर दो,
और मतलब बेसिकली P1 हमारी नोन प्रॉब्लम है, P1 हमारी नोन प्रॉब्लम है, P2 को हमें प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि ये क्या कर सकती है। तो बेसिकली दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड दिस इज योर एडिशन प्रॉब्लम। आपने एडिशन प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया मल्टीप्लिकेशन इंस्टेंसेस पे, मतलब आपने जब आपको ये दिया था और आपको सॉल्व क्या करना था, आपको ये करना था, तो आपने कोई ऐसा इंस्टेंस ढूंढ के लाए जिसको आप मैप कर पाए इसके इसके ऊपर। तो इसका मतलब कि P2 was as hard as P1. You have reduced P1 to P2. You have reduced P1 such that it behaves like P2. And because you knew something about P1, that is applicable to P2 also. So for example, if P1 is नॉट रिकर्सिव, देन अगर ये प्रॉब्लम नॉट रिकर्सिव है तो ये भी नॉट रिकर्सिव मानी जाएगी, और अगर P1 नॉट रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है तो ये भी रिकर्सिवली एन्यूमरेबल नहीं हो सकती। रिडक्शन समझ आई? ये प्रॉब्लम अननोन थी, इसके बारे में नहीं पता था। कोई नोन प्रॉब्लम पिक करो और उसके इंस्टेंसेस इस पे रिड्यूस कर दो। अगर कर पा रहे हो, देखो कई बार होगा कि कर पाओगे, कई बार नहीं कर पाओगे, आपको नोन प्रॉब्लम ढूंढनी है, दैट इज योर जॉब। सो ऑब्वियसली अभी यू विल नॉट बी डूइंग दिस, बट वेन एवर यू स्टडी एडवांस एल्गोरिथम, कभी एमएससी वगैरह में जाके या रिसर्च एल्गोरिथम्स वगैरह में करोगे, तो दिस इज द बेसिक थिंग फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट विथ। सो यू हैव एन अननोन प्रॉब्लम, you have to find a problem which you can reduce to a set of instances of unknown problem. So because you knew something about the known problem, then that property is applicable to the unknown problem also. तो सेम चीज, ये सारी ये कहानी यही बोल रही है। रिडक्शन विल टर्न पॉजिटिव इंस्टेंसेस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। A reduction must turn an instance of P1 such that a yes answer into an instance of P2 with a yes answer, and every instance of P1 with a no answer to instance of P2 with a no answer. तो सारे का टारगेट नहीं, कुछ 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 सब ऐसा नहीं होगा कि इसकी सारी प्रॉब्लम हर एक पे आप मैप कर पाओगे, कुछ सेट्स पे भी मैप कर पा रहे हो, कुछ इंस्टेंसेस पे भी मैप कर पा रहे हो तो चलेगा। तो a reduction from P1 to P2 is a Turing machine that take instance of P1 written on its tape. तो आपने जब P1 की रिडक्शन P2 पे करी तो बेसिकली टेप पे P1 है, एंड जब आपने इसको सिमुलेट किया तो कुछ 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 किया, कुछ टेप पे लिखा, कुछ ट्रांजिशन करे, तो फाइनली आउटपुट आया P2 का, दैट इज रिडक्शन। इनपुट P1 दिया लेकिन आउटपुट इंस्टेंस P2 का आया। So the theorem says that if there is a reduction from P1 to P2, if you can reduce P1's instances, this is your known problem, this is your unknown problem. If you can reduce that, so if P1 is undecidable, then so will be P2. So इसका क्या मतलब है कि P1 अगर undecidable है, तो अगर मान लो उल्टा सोच के चलते हैं कि अगर P2 डिसाइडेबल होती तो हम क्या करते कि P1 को पास कराते टेप पे, और उस इस इंस्टेंस को क्योंकि आप इस आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते थे, रिडक्शन कर सकते थे, तो और ये डिसाइडेबल थी, मतलब ये या तो एक्सेप्ट हो रही थी, आपने एज्यूम करा कि डिसाइडेबल है, या रिजेक्ट कर रही थी, तो आपने क्या किया, आपने P1 को कन्वर्ट कर दिया P1 और P2 के इंस्टेंसेस में, और ये एक इंटरनल मशीन है, इसका मतलब या तो P1 एक्सेप्ट हो रहा है या P1 रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब P1 इज ऑल्सो डिसाइडेबल, विच इज रॉन्ग क्योंकि हमारा P1 अनडिसाइडेबल था, so it contradicts. So that's why if P1 is undecidable, then and we are basic assumption is that you can reduce P1 to P2, then P2 cannot be decidable. So this is what all this is saying. The second thing is that if P1 is non-recursively enumerable, then so is P2. That is, if you cannot create a Turing machine for P1, you can never create a Turing machine for P2. So if assume that P1 is non-RE,
but P2 is RE. Again same thing, आप P1 के इंस्टेंस को पास करोगे P2 में तो या तो एक्सेप्ट करवाओगे या वो लूप फॉर एवर करेगा, बट आप उसकी ट्यूरिंग मशीन बनवा सकते हो, विच मे नॉट हॉल्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, बट यू कुड क्रिएट अ ट्यूरिंग मशीन. बट इफ यू कुड क्रिएट अ ट्यूरिंग मशीन, हमने बोला है कि P1 तो नॉन आ रही है, बट अगर ट्यूरिंग मशीन बना पा रहे हो इसका मतलब P1 आ रही है, तो हमारा जो बेसिक प्रिमाइस है वो गलत हो गया. इसलिए that is also not possible, and that's why these two things hold, that if there is a reduction from P1 to P2, so if P1 is undecidable then so is P2, if P1 is non-recursively enumerable then so is P2. Okay, now the last thing is languages LE and languages not LE and LNE. So all LE is the set of all the languages that have phi, that do not accept any word, that is all set of all Turing machine that do not accept any word, and LNE is basically the complement of this, that LNE is the set of all languages that accept some words, at least one word they accept. So you can create a Turing machine for both. So if LMA is phi, then MI does not accept any input, so W is in LE. So LE is a language that consists of all encoded TMs, वो सारी ट्यूरिंग मशीन्स जिनकी लैंग्वेज एम्प्टी होती है, और LNE वो सारी ट्यूरिंग मशीन्स के कोड्स, ट्यूरिंग मशीन्स मतलब यहाँ पे उनकी एनकोडिंग्स की बात कर रहे हो, दैट एक्सेप्ट एटलीस्ट वन इनपुट स्ट्रिंग. सो हम इनको अगेन एज्यूम कर रहे हैं 0 और 1 के ऊपर. सो वी आर सेइंग दैट कि these languages are recursively enumerable but not recursive. So we are saying, sorry, LNE is recursively enumerable but not recursive, while LE, which is a complement of LNE, is not even recursively enumerable. So LNE is recursively enumerable. आपने बेसिकली M का कोड लिया और कोई वर्ड एक्सेप्ट करवा दिया, अगर एक्सेप्ट हो गया, हॉल्ट हो गया और एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, अगर वर्ड उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि LNE इज बेसिकली समथिंग दैट एक्सेप्ट एटलीस्ट वन वर्ड, अगर कोई भी वर्ड लिया तो बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक फैशन में कोई भी जस्ट वर्ड पिक कर लो और उसको इसकी ट्यूरिंग मशीन पे पास करा दो, तो या तो वो हॉल्ट होएगा या वो लूप फॉर एवर करेगा, बट आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो. दैट्स व्हाई LNE इज रिकर्सिवली enumerable. So it is just guessed a word and you got it passed to the universal Turing machine. If it got accepted, this will accept, otherwise it will continue to loop forever. So this is recursively enumerable. So now you have to prove that LNE is not recursive. So reduce the universal Turing machine to LNE. ये वाली सेम चीज बोली है, इसमें आप ट्यूरिंग मशीन बना पा रहे हो, यहाँ पे आपने रिडक्शन कर दिया है. जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग आपने क्या किया है कि जो भी आपने आपने इस नॉन प्रॉब्लम यूटीएम को रिड्यूस करा है आपके उस पे unknown problem which is LNE. So this is basically your P1 and this is basically your P2. तो अगर वो रिजेक्ट कर रहा है या मतलब वो वर्ड नहीं है तब आप सिंपली इग्नोर कर रहे हो, और जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करा रहे हो. तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के बारे में आपने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि वो रिकर्सिव नहीं है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज फॉर दिस ऑल्सो. And LNE is not recursive. I think this is just the repetition of itself. So I think we are done. I think this is just how you have simulated. We have reduced LE and yeah. So basically we are done. Now questions.
First, tell me, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so I am done with your syllabus. Congratulations, everyone. I am done. Now you have a question, then you can ask or you can leave. Maybe Friday we will meet and start with revision topics or something that I might have skipped. मैम मेरा एक डाउट था ट्यूरिंग मशीन्स का टॉपिक पे। Mm-hmm. उसमें ट्यूरिंग मशीन बनानी थी एक फाइव पे एंड एक I is ब्रैकेट empty set. फाइव एंटी एलिमेंट ना मैम, तो मतलब जैसे अगर राइट रीड करेंगे और उसको ब्लैंक मिलता है तो हम्म। एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, यही है ना मैम फाइव का मतलब? फाइव का मतलब है हाँ कि कुछ भी नहीं, कोई भी वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, तो ब्लैंक आने पे ही एक्सेप्ट होना चाहिए, पहला ही वर्ड ब्लैंक होना चाहिए। पहला ही ब्लैंक होना चाहिए। कुछ भी आएगा तो आई थिंक इसको रिकर्सिवली एन्यूमरेबली बनाओगे, इट इज गोइंग टू लूप फॉर एवर। नहीं नहीं, यू कैन इवन गेट इट स्टॉप्ड इफ यू गेट यस मैम, समथिंग ब्लैंक एल्स। करते ही अगर कुछ ए एंड बी आता है तो उसको तो नो कर देंगे रिजेक्ट ना। में, हाँ हाँ, हाँ, ठीक रिजेक्ट में हो जाएगा। ठीक है। नहीं मैम, हाँ उसमें एक फाइ था एंड एक ब्रैकेट के सेकंड पार्ट में था, ब्रैकेट्स के अंदर ई दे रखा था। तो मैं ये पूछ एम्प्टी। रहा था ये दोनों चीज सेम है क्या? ई का मतलब भी तो वही है ना, नल का मतलब कि ब्लैंक आना नहीं, चाहिए। ई इज नॉट नल, ई इज एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। एंड फाइव इज it does not accept anything. So you are asking whether these two things are same or not. I think they यस should मैम। not even accept a blank actually. If देन acha blank, is blank a part of your alphabet? नो Is मैम, ए uh, एंड बी आर द पार्ट ऑफ अल्फाबेट्स। A and B are part of alphabet. So you have created a machine such that on your tape, if A and B comes, then you are going to reject, and if इफ blank ब्लैक comes, आई the एम first एक्सेप्टिंग। words. यस मैम। Sure. So blank and empty is not the same. If the tape should not contain anything. देन मैम यही तो कंफ्यूज एम्प्टी की डेफिनेशन यही दी है ना। मैम, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों सेम है या नहीं, कि क्योंकि नहीं उसमें नहीं भी नहीं नल है। नहीं, एम्प्टी जो आपकी बुक में डेफिनेशन, एक बार मुझे क्वेश्चन फिर भी भेज देना। बट जो एम्प्टी की डेफिनेशन बुक में दी है ना, उस हिसाब से टेप पे ब्लैंक भी नहीं पड़ा हुआ। दैट इज जितना मुझे ध्यान आ रहा है, जो बुक में डेफिनेशन है, empty is something where even a blank is not there on your tape. So if you can just forward this मैम question or probably एक put it on your वो। एक मिनट मिनट मैम, मैं आपको प्रेजेंट कर दूं राइट हाँ हाँ नाउ। हाँ हाँ। एक मिनट मैम। अच्छा, वो एल ई है या ब्लैंक टेप है? एल ई और फाई है? एल ई जो है वो है या फाई है? तुम मैं एक प्रेजेंट ही मिनट करो। हाँ, प्रेजेंट ही प्रेजेंट। कर रहा हूँ मैम, एक। मैम हाँ, थोड़ा सा जूम करो। ओवर ए ये वाला कॉमा बी दैट डिसाइड द फॉलोइंग फाइव ए बी। ओके ए एंड बी पार्ट मैम। ओके ओके। तो वो फाइव तो एम्प्टी सेट है, ए और बी का कुछ भी नहीं होगा। एंड इसमें ई की नोटेशन दिखाना, बुक में कहीं लिखी है ना ऊपर ई की नोटेशन क्या है? फाइव जो तुम बोल रहे हो वो तो सही है, जो तुमने ट्यूरिंग मशीन अभी बोली है ठीक वो है मैम। ठीक है। ई की ना डेफिनेशन दिखाओ मुझे एक बार, मेरे को ना ई की डेफिनेशन देखनी है कि बुक में कहाँ ऊपर है, ऊपर ही यहीं कहीं है ई की डेफिनेशन, वो क्या बोल रहा मैम है। ये तो मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं बुक, रुक जाओ एक मिनट, मैं बुक अच्छा खोलता चल हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बुक खोल लेती हूँ, रुको। मेरे को कौन सी वाली है ये बुक हमारी? मैम हॉपक्रॉ? आपकी नहीं मैम, जो आपने भेजी थी तीसरी बुक, नाम क्या पापा है उसका? डिमित्रो। हाँ। यूएस पापा। पेज नंबर कौन सा था इस वाले का आपका? ये हम्म, चैप्टर 4 है ना हमारा? हाँ मैम, ये पीडीएफ का पेज नंबर 214 है मैम। पीडीएफ का 214 है।
6 पे हूँ 2 1 ओके जस्ट अ सेकंड एक्चुअली दिस ई इज समथिंग कि आपका ना सिर्फ स्टार्ट सिंबल है ब्लैंक भी नहीं है मतलब if you get even a blank also then also you reject basically it is like that तो जो आपका इसमें ना मेरे को डेफिनेशन दिख नहीं रही है बट एक सेकेंड जो 5 वाला है उसमें आप ए और बी पे रिजेक्ट मारोगे और ब्लैंक मिलेगा तो आप एक्सेप्ट करोगे और जो ई वाला है ना उसमें ब्लैंक मिलने पे भी रिजेक्ट मारोगे तो मैम वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा फिर कभी। कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा हमेशा रिजेक्ट ही होगा तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम 5 बट आई विल गिव यू अ प्रॉपर मैम डेफिनेशन बट मैम जब हम एक कोई एग्जांपल था ANBN CN वाला। ओके पेज नंबर बोलो मेरे को दिख रहा था वो एग्जांपल कहीं पे अभी मैम अभी था इसमें ऊपर ही था मैम ऊपर ही है ANBN CN हाँ उसमें जब इन्होंने कहा है क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N दिया था तो उसमें 0 भी आता है तो 0 होने पे नल स्टेट पे जाएगा ब्लैंक ई आ जाएगा ना मैम अगर सब 0 कर देंगे ANBN CN हाँ तो मैम ये एएनबीएन सेल में तुम नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं यही बोल रहे हो ना मैम अगर n 0 रखेंगे तो एन मैम ग्रेटर ये देन इक्वल टू 0 रखा हुआ है हाँ इसमें हाँ मैम अगर n 0 रखूंगा मैं तो ये एक नल सेट बनेगा मतलब स्टार का जो बनता है पहला ई हाँ बनेगा ना मैम। हाँ तो मैम ई इस ई अच्छा तो ये एप्सिलॉन तुम एप्सिलॉन कंसिडर कर रहे हो क्या इसको हाँ मैम इसको आप ई इसमें कहीं लिखा है ई इज एप्सिलॉन तो मैम मैम यही होगा और क्या हो सकता है मैम क्योंकि लैंग्वेज में तो what I कुछ है ही was नहीं। assuming what I was assuming is E is nothing. मतलब the tape is also empty. Nothing is on the tape. That was my assumption. So probably I have interpreted it wrong. If you are, where did you see this E is epsilon? कोई पेज नंबर बता सकते हो क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा इसमें कहीं पे E। तुम्हारी मैम बात सही है जो तुम बोल रहे हो ना वो लॉजिक भी ठीक है बट मेरी assumption उल्टी थी then it changes everything no then it changes everything मैम यही तो कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं भी मुझे इसका कोई लिखा हुआ नहीं मिल रहा मैम कि ये हम्म पर्टिकुलर प्रूफ हो कि हाँ ये लिखा हुआ है ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा मुझे भी। ओके तो एक काम करो अभी तो एजम्पशन लेके कर लो ई को क्या मान रहे हो और वो क्या मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं 1 2 घंटे में आपको ढूंढ के बताती हूँ ठीक है मैम थोड़ा मैं सा फिर टाइम ये पार्ट मैं भी छोड़ रहा हूँ कि मैम ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था मेरे। असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है सारे बच्चे लड़ेंगे मेरे से मैम चल सॉल्व मैं कराता नहीं मैम बहुत अभी दिक्कत हो आप रही एक है मैं। काम करो आप एक काम करो ना आप हाँ इसको एजम्पशन लेके जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो आप सॉल्व करके सबमिट कर देना बट मैं ठीक स्टिल है फिर भी आपको ढूंढ के बता देती हूँ मैम एक चीज और मैम इसमें जो बुक में शिफ्ट राइट था वो मुझे वो गलत था वो तो मैंने हाँ पहले मैम ही बताया था क्लास में लास्ट हाँ वाला मैम जो एल आता है वो नहीं आएगा हाँ वो मैम मैंने वही क्लास में ही डिस्कस किया था वो गड़बड़ थी ठीक है मैम। ठीक है हाँ ओके मैम सो एक बार ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर के साथ ना या तो मैसेज कर दे या फिर उसी में डाल दे जो हमारी 4.2 का 4.2.2 मैं देख लूंगी हाँ हो गया ओके ओके फ्राइडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग डाउट्स अश्विन एक बार प्लीज क्लास में अनाउंस कर दोगे आई विल बी टेकिंग डाउट्स फ्रॉम फ्राइडे Yes, ma'am. ओके ओके मैम तो अगर मैं इसे ई को मतलब एप्सिलॉन क्या नल मान के चलूं तो ये 5 और ये सेम ही होंगे ना।
ब्लैंक नहीं, फाइव तो फिर ब्लैंक वो भी नहीं एक्सेप्ट करता ना, नल भी तो नहीं एक्सेप्ट करता, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द नल वर्ड ऑल्सो, देन फाइव शुड हॉल्ट ऑन एक वो बेसिकली जहाँ पे है विदाउट एक्सेप्टिंग उसको हॉल्ट कर जाना चाहिए, जो हमने अभी केसेस पढ़े हैं ना, इट शुड रीड and it should not do anything about it and just halt without, so it is not accepting anything, it is not, और आउटपुट पे भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैम तीन ये तो सिर्फ रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट कुछ सिर्फ नहीं होगा इन रिजेक्ट करेगा ना, फाइव दोनों मीन्स केसेस में। फाइव मीन्स नॉट इवन नल, इनफैक्ट अगर हम वो एजम्पशन ले रहे हैं, इनफैक्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस ओनली, फाइव just write five means that is not even accepting null and reject whatever is coming, and e means that you are taking a ब्लैंक null, yeah, so null ले रहे हो, blank ले रहे हो, null word is a blank इस केस में मैम representation, क्योंकि ब्लैंक्स तो होते ही है ना टेप पे, जब नल का मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ए एंड बी मुझे उसने लैंग्वेज दी है, तो तो बोलो, ब्लैंक। तो आप उसको वो assumption state कर देना कि आई एम assuming that blank is the null word, ओके मैम। ठीक है, फिर हाँ इसको सॉल्व एग्जैक्टली कैसे करना है वो मैं एक बार चेक करके बता दूंगी, बट राइट योर assumption, ओके मैम। ओके, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ना, फॉर एवरीवन एल्स समटाइम्स देयर विल बी अ कंफ्यूजन, सो इन दैट केस आप जो भी एज्यूम कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को पता है कि आपको नोटेशन नहीं पता, फिर भी आप आंसर एजम्पशन के बेसिस पे लिख रहे हो, तो जस्ट राइट एज्यूम एंड राइट व्हाट यू हैव एज्यूम्ड, ओके मैम। ओके, ओके चलो फिर एवरीवन, सी यू ऑन फ्राइडे, होपफुली दिवाली टाइम, ओके ओके, Thank you, ma'am. प्लीज थैंक यू। एक्सिट, यस, ओके, यू आर वेलकम, वेलकम एवरीवन, बाय। Done, done.